Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Fizan Ali Malik and I am from 2018 session of Geological Engineering, UET Lahore. Today we're gonna interview one of the most successful alumni of our geological department. So today my co-host is Bismillah Rustam. Let me introduce you first to her. So Bismillah, introduce yourself. Assalamu alaikum. This is Bismillah Rustam, student of Geological Engineering at UET and a member of Society of Geological Engineers. A very warm welcome to our guest Muhammad Adil Mazhar. Sir, this is an honor for us to host you. Okay, so first of all, I'll introduce you that the alumnus we're gonna interview today is a very, because you can say, successful one. He's now working in Norway, in the company of Denmark, which is holding international firms, and he's working on many projects now. He's working on wind power. He's working on the bridge construction. He's working on different infrastructure. So let me introduce you, Mr. Adil Mazhar. Yes, please. Uh, yes, as you introduced me, I don't think so. I'm the most successful geological engineer yet because we have I many said I many said one of friends. the most. Yes, thank you very much. Yeah. So my friends from 01 session, 02, and many juniors, they are doing very good. Thank you for a humbling introduction. Anyway, um, as you said, my name is Mohammad Adil Mazhar, and I am from 02 session, second session of geological engineering. Yes, yes. And I finished geological engineering in 2005, November, December. I worked in Pakistan on first. I worked for 1 month in Pakistan Engineering Services on some Satpara project, and there was one more this Bongscape hydropower. But then I switched to NDC, National Development Consultants, on the Amir Basha project, and I worked Okay, there for 2.5 years until we finished the tender design and tender documents. okay, Then I moved to Norway for masters in geotechnics and geohazard, and okay, there I finished my masters in 2010, and then I worked for 1 year in Sweden in NCC construction as a design engineer there. Then I moved back to Norway in 2011, and I worked for 8 years in public road administration, kind of National Highway Authority of Norway. okay. And in 2019, last year, February, I switched to Kuwi. Kuwi is Who is? Told uh, about. yeah, it's a consultant firm, engineering consultant firm. It's Yes, very prominent in bridge design in the world. I think it's yes. second or third most successful or most well-known firm in bridge design after Arup of Britain, and Oh, there is one more. I don't remember the name now. okay. And I am So, working in Kui as a technical lead or technical manager for yes. Geo department. I oversee both in geotechnics and engineering geology rock mechanics, Okay, and my role mostly is to lead the geos team in the large infrastructure projects. okay, sir. Yes. So, sir, how's the weather there? वहाँ पे कैसा मौसम है? आप नॉर्वे में हैं? यहाँ अभी तो ऑलमोस्ट हाफ अ मीटर स्नो है ओह, ओस्लो में, बिकॉज ये अच्छा, 2 दिन से शुरू हुई है, स्नो मतवातर हो रही है, अच्छा। एंड इट्स गोइंग ऑन, सो इट्स वेरी कोल्ड, नॉट वेरी कोल्ड बट प्रीटी कोल्ड. नहीं, आपको वहाँ पे आदत होगी क्योंकि क्योंकि यहाँ पे तो हर बंदे का फिर अपना एडेप्शन होती है ना, एडेप्टेशन। नो, तो आई एम वेरी आप, यूज्ड टू इट. हमारे यस, बच्चे तो स्नो तो में मतलब सेवरल आवर्स स्पेंड कर सकते हैं. हाँ जी. जी सर। तो सर आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे लॉकडाउन की क्या कंडीशन है? आपको पता है पेंडेमिक अरूज पे है। लॉकडाउन लॉकडाउन इधर है, लेकिन इधर लॉकडाउन कुछ इस तरह का है कि पब्लिक गैदरिंग्स नहीं है, मतलब अलाउड मोर देन 10 पीपल. उसके अलावा यहाँ पे मतलब है कि एनी काइंड ऑफ रिलीजियस गैदरिंग कुछ भी अलाउड नहीं है.
लेकिन उसके अलावा मार्केट्स खुली हैं, स्कूल्स खुले हैं अभी आजकल, वैसे विंटर हॉलीडेज हैं, क्रिसमस हॉलीडेज, अदरवाइज स्कूल्स खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं, ऑफिसेज खुले हैं। तो जी सर। लॉकडाउन यहाँ सिर्फ सोशल गैदरिंग की हद तक है मोस्टली। ओके सर। तो ये इंटरव्यूज हम इसलिए कर रहे हैं, जो एसजी हमारी एक सोसाइटी है उसने प्लान किया कि हम इंटरव्यूज करेंगे अपने एलुमनाई का, ताकि जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं और जो ग्रेजुएशन इस वक्त कर रहे हैं वो जान सकें कि ये फील्ड क्या है, उनसे जो इस फील्ड पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो बिल्कुल एक गैप को ख़त्म करना, जिसे कहते हैं रिलेशन बनाना अपने सीनियर्स के साथ, अपने सक्सेसफुल लोगों के साथ, तो इसलिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं। सो शैल वी स्टार्ट? Yeah, sure. ओके First, I think I will appreciate it very much because I think थैंक यू सर। we had you guys had a round of text interviews. मैंने भी उसमें मतलब दिया था, but यस I think video interview is much better. यस सर, ये प्रॉपर फॉर्म है बिल्कुल। Yes. तो सर हम स्टार्ट करें फिर? Yes, please. अच्छा सर, मेरा अब से पहला क्वेश्चन ये है कि डज सीजीपीए मैटर्स? अगर आपको एक अच्छी स्टूडेंट को एक जॉब लेनी है तो क्या सिर्फ सीजीपीए ही मैटर करता है, कि उसके साथ साथ कुछ और भी मैटर करता है एक अच्छी जॉब लेने के लिए? I think CGPA does matter to some extent in the start, लेकिन CGPA in the long run doesn't matter. CGPA के साथ मतलब अगर आपकी CGPA लो है बट यू स्टिल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, आप इंटरव्यू में अगर अच्छे तरीके से उनको कन्विंस कर सकें, जवाब अच्छी तरीके से दे सकें, और अगर आप अपनी पहली जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अगर आप अच्छा रेफरेंस बना लें, तो फिर फर्दर ऑन CGPA मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहते। बट स्टिल यू नीड CGPA इन माय ओपिनियन। अगर मैं खुद हायरिंग करता हूं तो बिलो 2.4 पीपल आई नॉर्मली पहली जॉब के लिए मैं उनको प्रेफर नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई स्कूल में 2.4, उसने CGPA इज अ कुमुलेटिव एवरेज, सो अगर 4 साल को बंदा CGPA अपनी 2 से 4 से ऊपर नहीं लेके जा सका, इट मींस दैट ही इज काइंड ऑफ मतलब है कि केयरलेस पर्सन। यस जी यस। सर। सो तो सर पहली जॉब के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लेटर कई लोगों की लाइफ की सिचुएशन की वजह से उनकी CGPA समटाइम ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। इस वजह से उनको चांस एनीवे किसी ना किसी को तो देना चाहिए, और जी मिल भी सर। जाता ही है। हाँ जी। जी सर। तो सर इसके ऊपर मैं आपको ये बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं ना बच्चे, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी आते हैं कि मेरा सीजीपीए ऊपर जाए, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यानी कि वो बस नंबर लेने आते हैं। तो क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि स्किल्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होनी चाहिए उसके साथ कोई? स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंजीनियरिंग की जो आपकी बेसिकली जो आपकी फील्ड है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग जैसे है, जियोलॉजिकल में आप लोग आमतौर पर जो टेक्निक्स में या पेट्रोलियम जो साइंसेज में स्पेशलाइज करते हैं, उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब हाउ डज थिंग्स वर्क। जब आप जी फील्ड सर। में आते हैं, अगर आप जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, यू हैव टू वर्क विद डिज़ाइन। तो जी सर। डिज़ाइन की जो है फिलॉसफी, वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी उसकी जो फ्लो चार्ट है, जो उसका जी हाउ सर। डिज़ाइन वर्क्स फ्रॉम ए टू जेड, जी वो सर, आपको। स्किल्स आपके पास सारी होनी यस चाहिए। यस। तो सर फिर हम, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान में जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स का क्या स्कोप है, क्योंकि पाकिस्तान में इस फील्ड की क्या डिमांड है? जो जियोलॉजिकल इंजीनियर है वो कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है पाकिस्तान में, बजाय इसके कि वो बाहर जाके कोई जॉब ढूंढे? पाकिस्तान में जैसे अभी रिसेंटली काफ़ी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर के चल रहे हैं ऑलरेडी, हाईवेज के हैं, पहाड़ी इलाकों के हाईवेज के प्रोजेक्ट्स में जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का काफ़ी काम होता है। अच्छा। तो उस साइड पे डिज़ाइन में, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन में, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में, इन 3 साइट्स पे काम हो सकता है जियोलॉजिकल इंजीनियर्स का। जियोलॉजिकल इंजीनियर। लेकिन पाकिस्तान में जैसे पहले बात हुई कि जो है पाकिस्तान में खपत नहीं है इतनी जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है कि आप अब्रॉड जाके भी आप पहली जॉब कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन। वो तो सर और बहुत इवन अच्छी बात आपको जॉब ना भी मिले तो फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि गो ऑन फॉर फर्दर स्टडीज। है।
बिल्कुल। फर्दर स्टडीज, ठीक है। यानी कि मेरा मेन मकसद इस क्वेश्चन को पूछने का ये था कि पाकिस्तान के पास क्या इतने एम्प्लॉयमेंट की वो जराए हैं, क्या वो इंजीनियर्स को जॉब दे सकते हैं, जियोलॉजिकल इंजीनियर्स को? तो उसका फिर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल है आंसर है, लेकिन बात यह पाकिस्तान में डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट फील्ड्स की बहुत कोई क्लियर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि सिविल इंजीनियर्स जो हैं, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग करके जब लोग निकलते हैं जी तो वो सर। भी आपसे कम्पीट करते हैं बीएससी जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग वालों से, क्योंकि जहां भी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की जॉब आनी है तो वो सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, जियोलॉजिकल इंजीनियर भी हो सकता है, और इन सम केसेस जियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं जो बीएससी जियोलॉजी 4 इयर्स की जियोलॉजी करके आ रहे हैं आजकल लोग। जी ठीक है, ठीक है सर। तो सर आप कंपनीज के कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं जो कि हायर करती हैं इंजीनियर्स, रिक्रूट करती हैं फ्रॉम पाकिस्तान? मुझे पाकिस्तान से निकले हुए 12 साल हो गए हैं, तो इसलिए रीसेंट कंपनीज के नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आपको पता कंसल्टेंट फर्म्स हैं, नेस्पाक है, एनडीसी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज ओके। है, डीएमसी है, जी फिर चाइनीज कंपनीज कुछ आ गई हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जी चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर हैं, पाकिस्तानी जी कॉन्ट्रैक्टर हैं, डेस्कॉन है। जी। जब हमारा बैच टू फारिग हुआ था तो हमारे काफी सारे लोग डेस्कॉन इंजीनियरिंग में मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट पे जॉब शुरू किए थे उन्होंने। आई ओह, थिंक 4 या 5 लोगों ने। इट्स ग्रेट टू तो हियर। हाँ जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी उम्मीदें जागी होंगी। हाँ जी। तो इस तरह जैसे कंस्ट्रक्शन अभी मेहमद की स्टार्ट हुई है, दियामिर बादशाह की स्टार्ट हुई है, तो इंशाल्लाह देयर विल बी इंशाल्लाह। जॉब्स। लेकिन यही उसमें फिर आपको वही बात है, सिविल वालों से हम्म, कम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के वो प्रोजेक्ट्स हैं, उधर जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग इज बेटर देन सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज उन्होंने जी। सिर्फ वो सॉइल की उनकी जो उसकी वो एक्सपर्टीज है, और हमारी प्रॉपर रॉक्स की है, हमने जो ज्यादा कम मतलब हमने एक्सकेवेशन इंजीनियरिंग वगैरह के जो है ज्यादा डीप पढ़े होते हैं कोर्सेज। जी फाउंडेशन इंजीनियरिंग को हमने भी थोड़ा ज्यादा डीप पढ़ा होता है। जी सर। खास तौर पे जियोलॉजी और जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, एक्सकेवेशन इंजीनियरिंग है, टनलिंग इंजीनियरिंग है, उसमें सिविल बीएससी सिविल वालों का कोई मतलब इतना एक्सपोजर नहीं होता। आई जी डोंट नो अब शायद उनके करिकुलम में हो, लेकिन मोस्ट रिसेंटली 2-3 साल पहले जब मैंने करिकुलम चेक किया था तो उस वक्त तक तो नहीं था। तो ठीक है उसमें एज सर। है, उस एज को आप इंटरव्यूज में हाईलाइट करें जब भी आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाए। जी और सर, आप ठीक है। जी। तो सर फिर हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अब हर बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे के लिए काम कर रहा है, ऐसा है ना सर? या हर बंदा पैसे के लिए करता है काम। तो अब आप ये बताएं हमारे यंगस्टर्स को, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो मैं हूँ, मेरे साथ के और लोग हैं, कि जो इसकी जॉब्स होती हैं उसकी क्या सैलरी वगैरह होती है, फ्रॉम स्टार्टिंग बिगिनिंग एंड देन एट इंटरमीडिएट लेवल फर्दर? कोई रफ सा इन्हें बताएं ताकि थोड़ा जोश आए इनके अंदर, खुशी से सैलरी करें। देखिए, आई थिंक फर्स्ट जॉब के लिए सैलरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी उस जॉब की जो लर्निंग वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट ओके। है। फर्स्ट जॉब मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज में शुरू की थी, और 2006 जनवरी में मेरी 15,000 सैलरी थी, जो उस वक्त के हिसाब से अगर वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखा जाए तो शायद आज वो 45,000 50,000 के राउंड अबाउट होगी। तो इट वाज क्वाइट गुड सैलरी, और मेरा ख्याल है यही 30 to 50,000 हो सकती है रेंज फर्स्ट आपकी जॉब की, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आप कंसल्टेंट्स में हैं या कॉन्ट्रैक्टर में। कंसल्टेंट्स जी में ये रेंज होगी, और कंसल्टेंट्स में कॉन्ट्रैक्टर में थोड़ी कम भी हो सकती है, बट स्टिल आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लर्न क्या करेंगे उस जॉब से। कंसल्टेंट्स की जॉब में ठीक है, लर्निंग यानी कि आप बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्ट्रैक्टर में बहुत स्पेसिफिक आपकी जॉब मतलब है वो डिफाइंड होती है, और एक्टिविटीज डिफाइंड होती हैं। तो लेकिन सब लोग जाहिर सी बात है कंसल्टेंट में भी नहीं जा सकते, किसी ने कॉन्ट्रैक्टर जी का काम भी करना है। कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करना है। बिल्कुल। ठीक है। सो यू कैन से 25 to 50,000 के बीच फर्स्ट सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन माय ओपिनियन। ठीक है। अच्छी है सर, हमारे जैसे लोगों के लिए तो अच्छी है कि बिगनिंग पे आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है यार, खुश रहो। तो सर फिर हम आपसे अगला सवाल करते हैं, वो ये है कि आपकी ओपिनियन क्या है, ग्रेजुएशन के बाद आपको फर्दर स्टडीज को चूज करना चाहिए, फौरन से जॉब की तरफ जाना चाहिए? आप इसके अंदर अपना ओपिनियन बताएं। आई थिंक पहले कुछ एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, ज़्यादा बेहतर है, ज़रूरी तो नहीं ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप मास्टर्स में जाते हैं फ़ौरन बैचलर्स के बाद, तो आप बिल्कुल एकेडमिक ही रहते हैं।
और आप दोबारा जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं मास्टर्स के बाद, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है। आगे जो है उनकी भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एचआर पे आ जाता है कि बंदा मास्टर्स है, तो वो ना डिफिकल्ट हो जाता है डायरेक्ट जॉब आफ्टर मास्टर्स विदाउट एनी एक्सपीरियंस। इसलिए बेटर है कि आप पहले कुछ कम से कम 2 से 3 साल काम करके फिर आप मास्टर्स करें। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। मेरे भी ये ओपिनियन है इसके ऊपर कि इंसान को एक ग्रेजुएट को सबसे पहले थोड़ी सी इसके अंदर प्रोफेशनल राइटिंग बनाना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर वो मास्टर्स अगर आपने कोई आगे स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो बाद में कर लें आप। यस, ऐसा ही है सर। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। अब जो आगे की क्वेश्चंस हैं वो आपसे करेंगे बिस्मिल्लाह और को होस्ट, तो आई विल मीट यू अगेन। ओके बिस्मिल्लाह, यू कैन कंटिन्यू। ओके सर, सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट लाइफ में आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी, यानी आप सिर्फ पढ़ते थे या स्टडी प्लस इंटरटेनमेंट? हमारी स्टूडेंट लाइफ ऐसी थी कि वो 4 साल यूआईटी के स्टिल बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ कह सकते हैं। मेरे जो वो दोस्त हैं वो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बहुत ही हमने एंजॉय किया और हमने पढ़ा भी। हम ज्यादा पढ़ते थे प्रेप्स में, और ड्यूरिंग सेशन ऑब्लिगेटरी क्लासेस या ऑब्लिगेटरी लैब्स अटेंड करते थे। बाकी कोई खास लर्निंग एक्टिविटी बाकी मतलब नहीं थी होती ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन प्रेप्स में फिर हम पढ़ते थे। लेकिन ये था उस वक्त के नया नया इंटरनेट आया था, और यूआईटी के हॉस्टल्स में भी इंटरनेट अवेलेबल था। तो मैं पर्सनली जब फारिग होता था या अकेला होता था तो मैं बहुत था, मतलब मुझे बहुत क्यूरोसिटी थी कि अच्छा इसमें क्या है, मतलब जियोफिजिक्स में क्या है, जियोटेक्निकल में क्या है, रॉक मैकेनिक्स में क्या है। सर तो मेरा मैं क्वेश्चन बहुत इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड ज्वाइनिंग डिपार्टमेंटल सोसाइटीज एज अ स्टूडेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई वुड से। इवन के जैसे अब आप लोग मैनेजमेंट में हैं, अगर आप मैनेजमेंट में नहीं भी हैं बट स्टिल आई थिंक जो लोग सब लोगों को इवेंट्स अटेंड करने चाहिए। अब ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है कि आपके मतलब सारे जो 4 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको एक दफा लाजमी इस पे आधा घंटा 1 आवर स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज यस सर। apart from books and internet. जी जी सर। So सर नेक्स्ट आपको जैसे पता ही है कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो लैब के इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े ओल्ड हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये विल इट बी हेल्पफुल इन फील्ड और वन शुड बी एक्सपर्ट इन मॉडर्न वन टू? इन माय ओपिनियन ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, खासतौर पर लैब इक्विपमेंट का ओल्ड होना, लैब इक्विपमेंट का होना जरूरी है, वो आप फिजिकली ताकि उसको देख सकें, उसके ऑपरेशन को फंक्शन को आप मतलब ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन आज के दौर में जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी जो फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं फिजिकल मॉडलिंग की बजाय। तो वो भी बहुत जरूरी है, और जो कि अभी पाकिस्तान में बहुत कम पढ़ाई जा रही है। मतलब लैब इक्विपमेंट में आप लैब को देखते हैं और वो एक पार्ट ऑफ द जॉब है, बट एज ए इंजीनियर द मोर लार्जर पार्ट ऑफ द जॉब इज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। उसमें ओके सर। मतलब जी बिल्कुल, उसमें लैब का जो रोल है वो उतना नहीं। लैब का रोल ऑफ कोर्स लैब मटेरियल की कैरेक्टराइजेशन तक है, इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक अपडेट करनी चाहिए लैब डेफिनेटली, बट इट्स नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। हम जब सर्वे कर रहे थे, सर्वे का कोर्स पढ़ रहे थे, 2003 की बात है ये, तो हम 1954 के इक्विपमेंट्स देख रहे थे, बट आई थिंक वी स्टिल लर्न सर्वे वेरी वेल, क्योंकि वो जो एक्सप्लेन करने वाले थे उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें दूसरे कुछ मॉडर्न एक आधा इक्विपमेंट भी बिल्कुल दिखाया, और हमने उसके बारे में खुद कुछ सेल्फ स्टडी करके तो हमने लर्न कर लिया। ओके सर। सर नेक्स्ट वन, आपको जैसे पता ही है कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर बेस करता है रट्टाबाजी पे ना, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। स्टूडेंट्स याद करते हैं, पास करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि विल दैट अफेक्ट देयर प्रोफेशनल लाइफ, यानी जब वो फील्ड में जाएंगे, उन्होंने रट्टेबाजी की होगी, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो वो फील्ड में कैसे परफॉर्म करेंगे?
ये अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ये चीज़। मैंने पाकिस्तान में खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की कि बस बाय बाय लक मेरी नेचर ऐसी नहीं थी कि मैं रट्टेबाजी करता, बल्कि रट्टे वाले कोर्सेज में मैं 50% से ज़्यादा नहीं था ले सकता होता। तो लेकिन मेरे साथ जो कोलीग्स थे जो मतलब बहुत हाई मार्क्स लेके आते थे और बाद में वो लोग जब वो टू गेट थिंग्स डन वाली काम आता था, वो उधर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कॉन्सेप्ट्स बनाएं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स बनाएं और चीज़ों को मतलब है जो मतलब वर्क ओरिजिनल वर्क है जो फील्ड में होता है उसको कैसे करना है, उसके प्रोसीजर को समझें। बजाय ये कि मतलब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि आप फाउंडेशन आपने स्ट्रिप फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, तो आप डेफिनेटली फार्मूला को रटा लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि उसकी उसको डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन कोड कौन सा यूज़ करना है, आपने उसके लिए सेफ्टी फैक्टर्स कौन से यूज़ करने हैं, आपने मटेरियल पैरामीटर सेलेक्ट कैसे करने हैं, कैलकुलेशन एट द एंड तो वो फार्मूला तो एक फार्मूला है उसमें आपने डाला, लेकिन उससे पहले का जो वर्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो सर डिज़ाइन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पे लाजमी फोकस करना चाहिए, बहुत रटेबाजी ज़्यादा की तरफ ज़रूरी, नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर। और ये काम आपको आपके आपके एक्स्ट्रा टाइम में करने की ज़रूरत है। ये काम यूनिवर्सिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हो रहा। ये यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम का हिस्सा नहीं है। सो इसलिए मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को अपना कुछ सेल्फ टाइम स्पेंड करना चाहिए इन चीज़ों पे। यस सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर फिजान पूछेंगे, तो रेस्ट जी। सर फिजान। सर काफ़ी अच्छा लगा आपको मुझे सुन के कि ये आप रट्टेबाजी नहीं करते थे। मैं खुद बहुत नापसंद करता हूँ इस चीज़ को पर्सनली। कंसेप्ट से पढ़ना चाहिए, रट्टेबाजी में कुछ नहीं रखा। तो ओके सर, मेरा आपसे क्वेश्चन अब ये है कि विच थिंग मोटिवेट्स यू इन दिस होल जर्नी ऑफ योर सक्सेस? यानी सॉरी कि व्हिच थिंग? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया शुरू मोटिवेट। से? जी सर, या आप अपने ट्रैक पे रहें, अपने गोल्स को अचीव करें। काफ़ी मुश्किल होता है ट्रैक पे रहना। तो आपको क्या मोटिवेट चीज़ है इससे? मुझे एक ही चीज़ करती है, वो हमेशा मतलब बचपन से लेकर आज तक के मैं जो भी करूँ, उसको अच्छे तरीके से करूँ। यानी कि आपने टाइम चीज़ पे स्पेंड करना है, व्हाई नॉट डू इट इन अ गुड वे, इन अ बेस्ट, ट्राई टू डू योर बेस्ट। आई थिंक दैट्स द बेस्ट मोटिवेशन आई हैव। क्योंकि जब मेरी नेचर ऐसी है कि जब मैं बाद में रिव्यू करता हूँ अपने किसी काम को और उसमें देखता हूँ कि अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता था, तो ये चीज़ मुझे ड्राइव करती है कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर हो, उससे नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर हो। आई एम अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सन, तो डेवलपमेंट मतलब एम हाई एंड ट्राई फॉर इट, दैट्स द बिगेस्ट ठीक है मोटिवेशन। सर, ठीक है, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप हर चीज़ को कोशिश करते हैं उसके अंदर परफेक्शन लाने की। यस, यस। ये तो बहुत अच्छी परफेक्शन बात है। एज लॉन्ग एज पर टुडेज स्टैंडर्ड, of course, जी सर, things can be done better always. Never ऑलवेज। can be perfect, but yeah. there's always a chance, there's always a need for something. Yes. ठीक Yes. है तो सर, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप सक्सेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं? व्हाट इज सक्सेस? एक वर्ड जो सक्सेस है, व्हाट इज दैट? I think success is most importantly personal satisfaction. That is success. जी Even सर। आप दूसरों की नजर में शायद आप बहुत सक्सेसफुल नहीं हैं, but if you are satisfied, you are successful. आप as long as अपनी लाइफ में materialistically आप मतलब physically, materialistically, mentally satisfied हैं, जी सर। so you are a successful person. ठीक है। चलिए सर, आज आप फिर ये बताएं कि आपकी सक्सेस क्या है? यानी कि आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? Since you have said every person has a different definition of success. मेरी पर्सनल मतलब मेरी जैसे मैंने बताया आई एम डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सन, तो मैं पर्सनली ये अपने बारे में फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कम टाइम में अच्छी अचीवमेंट अच्छी डेवलपमेंट अचीव की है। आई Okay, एम इन टोटल 13 इयर्स एक्सपीरियंस, okay, बट जो जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे 20+ ईयर के एक्सपीरियंस, सारे मतलब 80% पीपल आर वेरी सीनियर हु हु रिपोर्ट टू मी। और उसकी रीजन ये है कि मैंने सिर्फ टेक्निकल
चीज़ों पे फोकस नहीं किया, मैंने मैनेजमेंट पे बहुत फोकस किया, हाउ टू मैनेज पर्सनल मतलब लोगों को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट्स। तो डेवलपमेंट आई थिंक आई फील कि मैंने अच्छी अचीव की है। वेरी गुड सर। ठीक है सर। तो सर ये काम की बातें तो हो गई सारी, आपकी फील्ड से रिलेटेड बात है, ये जॉब से रिलेटेड हो गई। अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं सर। यस सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपकी प्रोफाइल पे देखा था कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं। जी जी जी। सर पाकिस्तान से दूर रह के भी। पाकिस्तान से दूर रहने वाले आई थिंक ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके रीजन है कि मतलब जस्ट वन प्रिंसिपल ऑन ग्राउंड। मैं अभी पाकिस्तान से होके आया हूँ, थिंग्स आर प्रीटी सिमिलर एज बिफोर, बट ये है कि प्रिंसिपल पे बस ये है कि आई कैन नेवर सपोर्ट। वही बात है कि मोमिन की खासियत होनी चाहिए कि वो एक सुराख से दो बार ना डसा जाए। तो वो जिन लोगों को हमने एज ए रूलर पहले इतने साल दिए, और वो लोग जी हम लोग फोन नहीं, उनको हम दोबारा कभी चांस नहीं देना चाहते बेसिकली। जी सर। सर ये मुझे आपसे यही उम्मीद थी सर। सर हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं या इमरान खान के सपोर्टर हैं? मैं बेसिकली इमरान खान की आइडियोलॉजी का सपोर्टर हूँ। मैं पर्सनली इमरान खान को कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि ही इज माय आइडियल, ही इज जस्ट अनदर लीडर। लेकिन यह है कि जो जो उसका प्रिंसिपल है, आई एग्री विद हिम कि corruption is one of the largest problem of Pakistan. यस सर इट इज। Pak yes, because मैं इस कंट्री में रहता हूँ जहाँ सिर्फ 55 लाख आबादी है, और जिसकी टैक्स कलेक्शन जो है वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल में कोई 10 गुना ज्यादा होगी। तो हाउ कम के पाकिस्तान की 22-23 करोड़ की आबादी जो है, जो इतना बड़ा मुल्क चल रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फूड पे प्रॉपर टैक्स, फूड इंडस्ट्री पे प्रॉपर टैक्सेशन हो जाए, तो आई थिंक इट्स मोर देन नॉर्वे। इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री विद वेरी लार्ज रिसोर्सेज एंड वेरी लार्ज सर्विस सेक्टर। So यस if things work in a transparent manner, we have no issue in Pakistan. Yes. सर। ठीक है यस सर, वी सर। एग्री। अच्छा लोग कहते हैं कि इमरान खान वो उस तरह से हुकूमत नहीं संभाल पा रहा, इन्फ्लेशन रेट ऊपर है, लोग नहीं खुश। आप उस पर क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि अगर इधर नोली क्या पीपीपी भी होती तो इन्फ्लेशन रेट यही होता, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो सेम ही होनी थी, शायद इससे वर्ष ही होती। वो आके ज्यादा लोन लेते, जब ज्यादा लोन होते हैं तो फिर इन्फ्लेशन एनीवे। सो आई डोंट थिंक सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। ठीक है। ठीक है सर, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ क्योंकि मेरे भी यही व्यूज हैं। और कम से कम गद्दार तो नहीं है ना नवाज शरीफ की तरह। मैं इतना मतलब आप यंग है, यंग तो ब्लड में जरा ज्यादा इमोशंस होते हैं। मैं इतना एक्सटेंड तक नहीं जाता आमतौर पे, लेकिन ये है कि एनीवे आई डोंट थिंक नवाज शरीफ हैव परफॉर्म्ड इन हिज टेन्योर इधर। जितनी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसके दौर में हुई है, उतनी इकोनॉमी हमारी ड्राइव नहीं हुई। इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर किसी तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो मोर देन 10% होती। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अब आपसे कुछ लास्ट सवाल होंगे जो कि बिस्मिल्लाह आपसे करेगी। जी इट विल जी बी अ रैपिड फायर। वो आपसे दो चीज़ें पूछेगी, आपने इन दोनों में से चूज करनी है कोई एक चीज़ जिसको आप प्रेफर करते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ सवाल होंगे, तो आपने ना बस जो आपको बेहतर लगे आपने उसके नाम लेना है। तो ठीक बिस्मिल्लाह है। को कंटिन्यू रैपिड फायर। सर आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, यानी सोचना नहीं है, ठीक है? ओके सर, रेडी? ठीक है रेडी। ओके सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन आई से लीडर? इमरान खान। ओके, पब्लिसिटी? मरियम नवाज। नो सर, यूईटी? यूटी माय लव। सरगोदा?
Sargodha also I love. Okay, sir. Social media. Very useful. ओके सर। सर अब आपने चूज करना है इन दोनों के दरमियान फास्ट फूड और देसी फूड। Definitely desi food. ओके सर। टेक्सटिंग और टॉकिंग। Talking. टॉकिंग। ओके सर। गिविंग प्रेजेंट्स और टेकिंग प्रेजेंट्स। Giving presents. ओके। सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस। Experience. ओके सर। लास्ट वन ये कि क्लिम्बा माउंटेन और स्विम एवरी ओशन। Climb a mountain. I'm not good at swimming. ओके सर। सर अब आपने इन क्वेश्चंस के एक या दो वर्ड में आंसर देने हैं। नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। Arif Alvi. यू नो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता प्रेसिडेंट का नेम। PTA. अच्छा सर नेक्स्ट मैंने आपसे ये पूछना था कि इमरान खान ने कहा था ये सीरीज पाकिस्तान में देखी जाए, तो आपने अर्तुगरुल गाजी देखा? हाँ जी सारा कंप्लीट देखा। सीरीज देखी? हाँ जी सर। आपका फेवरेट विलन कौन सा है? नोयान। ग्रेट। सबको यही पसंद है सर विलन में। अच्छा सर ये थोड़ा सा स्टूपिड वन है लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, डू यू रिमेम्बर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? I remember I have 3 daughters. बहुत यंग हैं तो उनके सामने ये गाना पड़ता है बिल्कुल। सर आप जब नर्सरी क्लास में थे तब भी थी ये? जी था बिल्कुल ये। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करके कुछ पूछना चाहता हूँ सर। जी पूछे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने बिजी हो गए, सारी सीरीज आपने देखी, आपको टाइम कैसे मिला? नॉर्वे में नहीं बंदा इतना बिजी होता, इधर 8 आवर्स ऑफ मतलब डे वर्क है, 7.5 आवर्स बेसिकली, तो वीकेंड्स में फिर अच्छा टाइम होता है। हाँ जी। और मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके देखा है आहिस्ता मतलब, तो मैंने सेवरल मंथ्स आई थिंक समर में देखना शुरू किया था और ये ऑटम में आके खत्म हुआ। अच्छी एवरेज है सर। आपने फेवरेट हीरो नहीं, आपने फेवरेट पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं पूछा अर्तुगरुल का? तो वो तो सबको ही या नूरगुल पसंद होते हैं या अर्तुगरुल पसंद होते हैं। मैं इनका विलन पूछती हैं। मुझे बामसी पसंद है वैसे। बामसी उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, ग्रेट था वो। उसकी जो फर्दर उस्मान में जो उसकी एक्टिंग है, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। यस सर। ओके फैजान सर यू कैन कंटिन्यू। सर अब आप हमें कुछ ऐसी बात बताएं जो कि बहुत पते की हो, हमें ना पता हो। आई थिंक बहुत देखें मैं थोड़ा सा मतलब मैं हूँ कह रहे हैं बोरिंग हूँ इस मामले में, लेकिन मैं मेरे ख्याल में मजे की बात यह है कि आप लोग अगर जब पढ़ रहे होते हैं, जब आप खासतौर पे जुलॉजी इंजीनियरिंग टाइप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं जिसका पाकिस्तान में मतलब अभी तक बहुत अच्छा डिफाइंड जॉब्स नहीं है सारा कुछ, तो आप एक एंजाइटी का शिकार रहते हैं थ्रू आउट योर स्टडीज। आफ्टर स्टडीज वक्त एंजाइटी बहुत हाई हो जाती है जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। तो लेकिन मेरा सबसे यही है कि हम भी इसी एंजाइटी का शिकार थे, बल्कि हम आपसे ज्यादा एंजाइटी का शिकार शायद होंगे क्योंकि हमारे दौर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक इशू भी चल रहा था। तो लेकिन ये है कि मेरा सबको यही होगा मैसेज कि एंजाइटी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। यू हैव मेड अ चॉइस, ट्राई टू डू योर बेस्ट इन योर चॉइस एंड इंशाल्लाह इट विल बी ऑलराइट। बोथ फॉर योर कैरियर, फॉर योर वर्ड्स। आपने बहुत अच्छी बात बताई। आई होप जो देखने वाले हैं उनको समझ आएगी। तो सर फिर इसके साथ ही हम इसको एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आपसे बात करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला और यकीनन ऑडियंस को भी मिलेगा। तो हम इंशाल्लाह इंटरव्यूज करते रहेंगे रीमिना के साथ, तो सीखते रहेंगे क्योंकि आपसे ही तो सीखना और किससे सीखना है। अगर आपसे नहीं सीखेंगे तो फिर किस तरह करेंगे। तो it was very good talk with you. I will try to meet you guys when I come to Pakistan next time inshallah. विजिट करता हूँ मैं यूनिवर्सिटी विजिट, पिछले कुछ अरसे से नहीं कर सका, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई विल ट्राई टू विजिट। आई हैव वेरी वार्म रिलेशन विद फारूक साहब, बहुत अच्छे बहुत ही नाइस आदमी है वो माशाल्लाह। वो बड़ी खुशी है कि वो डिपार्टमेंट के चेयरमैन है
जी सर, इंशाल्लाह मिलेंगे आगे उनसे भी और आप लोगों से भी. ठीक है सर, इंशाल्लाह we'll meet. Okay, sir. So in the last, I would like to say that जो SG है वो इस तरह की, I'm saying this for audience basically, that SGE is the Society of Geoscientists and Engineers in Geological Department. It is conducting the interviews of the alumni, a series of interview with alumni, so that the new ones can get through this and know the things which they don't know. Okay, so हम इसके बाद और interviews करेंगे, तो I'm saying to the audience, stay tuned. ठीक है sir, thank you very much. Yes, have Thank a you nice so day. much, sir. Thank Allah you for Hafiz. showing interest in alumni interview series of Society of Geological Engineering. This means a Thank you lot. for Thank you so much. Yes. Okay. Okay. Allah Hafiz. Allah.